So, welcome, dear students. This is the new subject that we are going to study now. The name of the subject is optimization technique. So, the first question that will come to your mind that what is optimization technique? Why this has been used, etc., etc. All these things, all the questions you are going to face. But before going into the details, let me just take an example that what optimization technique is. Let us consider that you are traveling to a certain destination particularly. Let us consider the example of Amravati only. So you are traveling to central bus stand of Amravati. So how you are going to reach out to the central bus stand of Amravati? There are 3-4 options available for you. The first one option is particularly you are starting your journey from the institute only. Our institute, our college, Professor Rammege College of Engineering and Management. The thing is that how you are going to start your journey. Your journey can be started from the new express highway. You will reach out to the new express highway. Then you will land in Chaprashipura, something like that. And after, through Chaprashipura, you will go to the central bus stand. This is one way. Second, you will go through the old bypass. You are going to go through old bypass. Old bypass through that again Chaprashipura corner and then central bus stand. You can go through uh, Badnera road also. That means Badnera road to Rajapet to Rajkamal, and Rajkamal se central bus stand. So the thing is that there are alternatives to each and everything. Now, which way you are going to prefer? If you want to save time, then you are going to prefer the expressway. But the thing is that here main question that was in your mind that am I going to save, to what extent I will sacrifice. I will sacrifice petrol, then there is a different case. I will sacrifice time, then there is a different case. And if I want to sacrifice something else, then there is a different case. That means I have some another work also, and I have to carry out that work also while reaching to the central bus stand, and that thing is also necessary for me. So there are three options which are available to you. So what kind of options you are dealing with? So first is you want to save the time, then you choose the new bypass. You want to save the petrol, then go through old bypass. If you want to save the petrol, then go through old bypass. If you want to save the time, then opt for new bypass. The thing is that here your objective is more important. On the same ground, same सवाल के ऊपर, what is your objective? That time the solution is being constructed, the whole things are designed in that manner. So this complete structure can be termed as a small example of optimization technique. So the question is, what do you want to optimize? आपको कम क्या करना है या आपको क्या मैक्सिमम चाहिए? ऑप्टिमम का मतलब दोनों होता है. ऑप्टिमम का मतलब मिनिमम भी और ऑप्टिमम का मतलब मैक्सिमम भी. So what you want to maximize or what you want to minimize? Particularly if you want to save the petrol, that means you have to, that is a different question. If you want to save the money, that is a different question. Let us
let us consider that you want to save the money. On that context, it may be possible that you will have to use the petrol in a proper manner. If you want to save the time, particularly from new bypass, then what will happen? New expressway. So that new expressway will give you the opportunity that you can travel for 120 km per hour. Through the old bypass, you can travel at max for 40 to 60 km per hour. So this is the difference between those two equations. So if you want to save something extra, you will have to pay something extra. On the similar kind, that what is your objective, this will design the entire scenario, entire model. This is termed as optimization technique. That means this is collected in the optimization technique. So what you are going to see in this paper, so you will have to say, you will have to first of all first of all you will, in the first unit, you will come to know what is optimization technique, what are different structures of the optimization technique, how it has been derived, etc., etc. In the second unit, you will still the linear programming. In the third unit also you are going to see the linear programming. After that, non-linear programming. After that, dynamic programming, and last one is CPM PRT. So this is the structure, and particularly let me clear one thing, that before learning to that, you will also see the transportation problem also. So what is transportation problem? It is a famous salesman problem, transportation problem. Those are famous problems. Particularly, the person who are doing MBA is well known with the things. That this is the most important chapter, most important concept. Operation research or optimization technique are the most important concept in case of managerial decisions. So it is very much necessary for them to study this also. Now you will also find that why it is necessary for me, sir. I am being an electrical engineer. What is the usage of this optimization technique for me? It is very easy. Being an engineer, you want to save the time. Apart from that, you want to save the money. Apart from that, being an electrical engineer, you are also responsible for the electrical path of the building. So it is necessary for you how you are going to create the path so that the losses are less and profit is maximized. Once the loss in the electricity is less, clearly you are going to save the electricity and you are going to make the profit. So this is the fundamental concept. So you can clearly identify कि आपको आपके बिल्डिंग का पाथ ऐसा बनाना है, आपको उसकी लाइट ऐसी डिजाइन करनी है so that losses should get minimized. ये कंसेप्ट याद रख के चलिए so that आप क्लियर हो जाएंगे इसमें. So while introducing the first our uh, first unit, let us go for the first unit. तो इस फर्स्ट यूनिट में हम क्या क्या देखने वाले हैं? So we are going to find out the introduction of optimization, necessity of the optimization, historical development, engineering applications of optimization, parameters, parameters particularly used for optimization. यानी ऑप्टिमाइजेशन में कौन कौन सी चीजें कंसिडर की जाती है, उस केस से मैंने इसको क्या लिखा है, पैरामीटर लिखा है. आफ्टर दैट, स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, क्लासिफिकेशन एंड क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन हम इसको जरा सा साइड में रखेंगे. ठीक है, यानी आज हम यहां तक ही पढ़ने का ट्राई करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहां तक आता है. क्लासिफिकेशन एंड क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन ये दोनों भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन मैं उसको अटैच करूंगा सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन वगैरह वगैरह के साथ. हाँ, तो इसमें ये भी होगा कि सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन क्या है, मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन क्या है, सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन में कौन कौन सी मेथड्स यूज की जाती है, मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन में कौन कौन सी मेथड्स यूज की जाती है, एंड सो ऑन. उसके आगे बढ़ेंगे. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन.
So see carefully. Optimization is the art, is the act of obtaining the best possible result under given circumstances. What is best possible result? ऑप्शन क्या दिया है, मॉडल क्या दिया है, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द रिसोर्सेस अवेलेबल, उसमें क्या हो सकता है. तो दैट इज नथिंग बट ऑप्टिमाइजेशन. इसका सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ. आपके घर में जो आपकी माताजी जो खाना बनाती है, दैट इज नथिंग बट द ऑप्टिमाइजेशन. हाउ यू आर सेइंग दैट दिस इज ऑप्टिमाइजेशन? सर आप ये कैसे बोल सकते हो कि ऑप्टिमाइजेशन है? बड़ा आसान है डियर स्टूडेंट्स, जरा ध्यान देकर देखो. आपकी माताजी खाना बनाते हुए कभी कभी कोई चीज कोई इंग्रेडिएंट होता ही है ऐसा नहीं है, कभी कभी कोई इंग्रेडिएंट होता है, कभी कभी नहीं होता है. ऐसे केस में आपकी माताजी वो प्रॉपर उसी इंग्रेडिएंट्स जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, वॉट एवर इट में बी, वो यूज करके एक आउटपुट आपके सामने डिजाइन करती है गिवन सर्कमस्टांसेस के अंडर, और बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आपके सामने मिलता है. सो उस केस को हम क्या कहेंगे? ऑप्टिमाइजेशन ही कहेंगे, नो डाउट अबाउट इट. नाउ जरा ध्यान से देखोगे तो इन डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी इंजीनियरिंग सिस्टम, engineers have to take many technological and managerial decisions at several stages. ये फंडामेंटल ट्रूथ है कि in designing, construction and maintenance of any engineering system, engineers have to take many technological and managerial decisions at several stages. Let me give you an example. पर्टिकुलरली एग्जाम्पल लेता हूँ सिविल इंजीनियरिंग का. सिविल इंजीनियरिंग के लिए बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई खाली प्लॉट हमारे सामने आता है, when we want to construct that plot, particularly what we used to do, हम किसी स्ट्रक्चरल, हम किसी जाते हैं आर्किटेक्ट के पास सो दैट हम उसका डिजाइन फाइनल कर सकें. आर्किटेक्ट उसका डिजाइन फाइनल करके देते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर उसका स्ट्रक्चर बना के देता है. स्ट्रक्चर बनाने के बाद सिविल इंजीनियर, जो नॉर्मल सिविल इंजीनियर होता है, वो नॉर्मल सिविल इंजीनियर वहां पर वो पूरी चीज मॉनिटर करके कंस्ट्रक्ट कर लेता है. नाउ द थिंग इज दैट on the ground it may happen that due to certain error उसको कभी कभी उस डिजाइन में थोड़े से स्लाइट चेंजेस करना पड़ सकता है, या कोई उसका जो, ये भी हो सकता है कि जो ओनर है वो ओनर ये कहे कि नहीं मुझे इसमें थोड़ा सा क्या चाहिए, रन टाइम पे डिसीजन थोड़ा सा चेंज चाहिए, डिजाइन थोड़ा सा क्या चाहिए, चेंज चाहिए. तो उस केस में वो डिजाइन भी हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं. ये फंडामेंटल है, यूज्ड, बहुत यूज टू एग्जाम्पल है, बहुत बार होता है, उसमें कोई शक नहीं. सो द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल सच डिसीजंस इज टू ईदर मिनिमाइज द एफर्ट रिक्वायर्ड और टू मैक्सिमाइज द डिजायर्ड बेनिफिट. क्लियर है? ये सब किस लिए किया जाता है? अल्टीमेटली ये किया जाता है या तो आप एफर्ट को मिनिमाइज करो और प्रॉफिट को क्या करो, मैक्सिमाइज करो, या डिजायर्ड रिजल्ट जो है आपका उसको प्रॉपरली एनालाइज करो. नेक्स्ट, ये ऐसी केसेस में पर्टिकुलरली वो यूज किया जाता है. नेक्स्ट, सिंस द एफर्ट्स रिक्वायर्ड और द बेनिफिट डिजायर्ड इज एंड इज पर्टिकुलरली, ये जो चीजें हैं इन एनी प्रैक्टिकल सिचुएशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन एनी प्रैक्टिकल सिचुएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ सर्टेन डिसीजन वेरिएबल्स. यानी this can be expressed, can be functions of certain decision variables. Optimization can be defined as the process of finding the conditions that give maximum or minimum value of the function. यानी ये जो दिया है ये अल्टीमेटली ये किस में से दिया है कि वो या तो मैक्सिमाइज करना है, अदरवाइज यू हैव टू मिनिमाइज इट. So ultimately you have to find out that you have to maximize it, you have to minimize it, whatever it may be, you have to done the thing, you have to do the things. Now the definition can be, जो हम डेफिनेशन कहते हैं वो, तो प्रॉपर डेफिनेशन जिसको मैक्सिमम बार एक्सेप्ट किया गया है तो वो ये है ऑपरेशन रिसर्च. ऑपरेशन रिसर्च मतलब ही क्या है, ऑप्टिमाइजेशन है, ये बात याद रखिए. ऑपरेशन रिसर्च इज एन एक्सपेरिमेंटल एंड अप्लाइड साइंस डिवोटेड टू ऑब्जर्विंग, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ पर्पसफुल मैन मशीन सिस्टम. ये बात इंपॉर्टेंट लिखिएगा
कि ऑपरेशन रिसर्च इज एन एक्सपेरिमेंटल एंड अप्लाइड साइंस डिवोटेड टू observing, understanding and practicing the behavior of purposeful man machine system with some reason. Without reason ये सब कुछ काम का नहीं है. The thing is that it should be done with some reason. ये with reason काम करेगा. पर्टिकुलरली वो रीजन क्या होने चाहिए कि पर्पसफुल मैन मशीन सिस्टम वो या तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को मिनिमाइज नहीं तो मैक्सिमाइज करने के लिए काम करे. And OR workers, OR means operation research workers, are actively engaged in applying this knowledge to the practical problems in government, business and society. Yani the thing is that the persons who are studying the operation research or optimization are frequently have to do or apply their knowledge to a system which consists of government machineries, businesses and societies. Now you could clearly identify this why this government is necessary. So see carefully. Let me just give you an example. This example is very unique example, and how the system can be evolved or how the system can be changed. This example you could find it very well. So the thing is that there are n number of persons who are having income more than a particular range, and still they are availing the facilities of the government, particularly which are available for poor people. This might happen. आप ये बहुत बार अच्छे से जानते हो कि ये बहुत बार होता है. कुछ हाई इनकम ग्रुप वाले लोग भी अनफॉर्चुनेटली लोअर इनकम ग्रुप वाली चीजों के साथ एसोसिएट हो जाते हैं. पर्टिकुलरली वो ये कि उसमें जो गड़बड़ वाली चीज होती है वो गड़बड़ वाली चीज हम आइडेंटिफाई कर लेते. सो द थिंग दैट व्हाट हैज हैपेंड, द गवर्नमेंट हैज टेकन अ डिसीजन दैट यूर सी केयरफुली पैन कार्ड and Aadhaar card should be linked. कि भाई पैन कार्ड और आधार कार्ड इन दोनों को लिंक कर दो. गवर्नमेंट ने कह दिया इन दोनों को लिंक करो. अब गवर्नमेंट ने जब कह दिया कि इन दोनों को लिंक करना है तो लोगों ने लिंक करना चालू कर दिया उसको. अब लिंक कैसे करेंगे? अब लिंक करने के लिए एक पर्टिकुलर वेबसाइट बना दी. वो वेबसाइट से वो लिंक हो गया, आधार को पैन हो गया. पहले तो लोगों ने सोच लिया कि ये क्या है, गवर्नमेंट चाहता है कुछ ना कुछ करना, चलो ठीक है फलाना फला फला फला. जितने लोगों के पास पैन कार्ड था उन सब लोगों ने आधार कार्ड के साथ उसको मैच कर दिया. अब पैन कार्ड किस किस के पास था? कोई भी बैंक का प्रोसीजर करने के लिए, लोन वगैरह वगैरह एटसेट्रा, ये प्रोसीजर कैरी आउट करने के लिए आपको पैन कार्ड कंपलसरी चाहिए. यानी जो बंदा बैंक की कोई भी लोन लेता है, फला कोई भी XYZ लोन ले, तो उसको वो अपना पैन कार्ड बनवाना ही पड़ता है. उसके बिना वो तो आगे वो लोन प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा. सो सी केयरफुली कि नंबर 1, जिसको लोन लेना है उसको पैन कार्ड जरूरी है. नंबर 2, जिसको पैन कार्ड जिसके पास है उसकी पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है. ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ. जिसको लोन वगैरह बैंकिंग की एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स करनी उसके लिए पैन नंबर नेसेसरी है. नंबर 2, जिसके पास पैन नंबर नेसेसरी है उसकी गवर्नमेंट के पास उसकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. नंबर 3, अगर आप 50,000 से ज्यादा कोई मनी बैंक में डिपॉजिट करना चाहें, एट दैट टाइम यू हैव टू सबमिट योर पैन कार्ड. इट इज कंपल्सरी, मैंडेटरी. सो वन टाइम अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा मनी आपके पास आ जाए तो भी वो पैन कार्ड पे आइडेंटिफाई हो जाएगा, लिस्टिंग हो जाएगा. नंबर 4, आधार कार्ड सबके पास है. क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है ना? पैन कार्ड सबके पास नहीं है लेकिन आधार कार्ड सबके पास है, और वो आधार कार्ड अब पैन कार्ड से जुड़ चुका है. सो थिंग इज दैट देयर आर, अब ये पूरा मैचअप हो गया. यानी आधार कार्ड सबके पास है, पैन कार्ड सबके पास है,
आधार कार्ड सबके पास है, पैन कार्ड कुछ लोगों के पास है, लेकिन जिनके पास पैन कार्ड है उनका पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ चुका है। चाहे वो खेती करने वाला किसान हो जिसके पास पैन कार्ड है, चाहे वो मजदूरी करने वाला हो, फला फला जो भी है, जिसके पास पैन कार्ड है उसका पैन कार्ड अब आधार कार्ड के साथ जुड़ चुका है। अब ये सिस्टम में ध्यान से सुनना, फिर अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो आधार कार्ड गवर्नमेंट की डायरेक्टरी में बिलो पॉवर्टी लाइन में रजिस्टर्ड है, नंबर 1, और वो आधार कार्ड उस पैन कार्ड से अटैच्ड है जो पैन कार्ड बिलो पॉवर्टी लाइन के रेंज में नहीं आता, तो वो आधार कार्ड उन्होंने डिलीट कर दिया अपने लिस्ट में से। अब उनके लिस्ट में से अगर वो डिलीट हो जाए तो इसका मतलब ये पकड़ के चलो कि कितने लोगों को जो बेनिफिट जाता था वो गाना बंद हो गया। तो गवर्नमेंट ने एक सिस्टम अप्लाई कर दी, उसको कहते हैं DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में ये जो प्रॉब्लम वाली केसेस थी वो क्या हो गई, हट गई। जैसे ही वो हट गई, इमीडिएटली जो नेसेसरी लोग थे उनके पास बेनिफिट जाने लगा। पहले भी जाता था, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब गवर्नमेंट के उसमें पैसे बचने लगे। दिस इज कॉल्ड यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर saving the government money, an example of optimization. Understood? An example of optimization. So ये याद रखना, ठीक है। बिजनेस में तो होता ही है, उसमें कोई शक नहीं, सोसाइटी में होता है उसमें कोई शक नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अब जरा सा, अब कोई रोड बड़ा बन जाता है, सोसाइटी कोई रोड बड़ा बन जाता है, रोड बड़ा बनेगा तो जो ट्रैफिक है वो ज्यादा मोबिलाइज होगा, पेट्रोल बचेगा, पेट्रोल बचेगा तो वो पेट्रोल हम थोड़ी ना हम खरीदते हैं, गवर्नमेंट पेट्रोल खरीदता है ना। अंडरस्टूड? गवर्नमेंट पेट्रोल खरीदता है तो उसके ऊपर इंपोर्ट टैक्स वगैरह वगैरह फला 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 चीजें लगती है। अल्टीमेटली वो जो लॉस है वो लॉस हमारे इकोनॉमी में चला जाता है, तो वो जो इकोनॉमिकल लॉस है वो कहीं ना कहीं तो बचेगा अगर हमारा पेट्रोल थोड़ा सा कम हो जाएगा तो, यानी हमारा पेट्रोल थोड़ा सा बचना चालू हो जाएगा। तो ये बात याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट, सोसाइटी, सोसाइटी में ये सब चीजें आ जाती है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। सो यू कुड क्लियरली आइडेंटिफाइड व्हाई ऑप्टिमाइजेशन इज नेसेसरी। सी केयरफुली, कुछ हेवी वर्ड्स की वजह से मैं कुछ यहाँ पर थोड़ी चीजें हो सकती हैं आप देख ना पाए। ऑप्टिमाइजेशन किसके लिए नेसेसरी है? सेफ्टी के लिए नेसेसरी है। सेफ्टी यानी क्या? आप अपने कार के अंदर की जगह इतनी ऑप्टिमाइज डिजाइन कर लो सो दैट आपको सेफ्टी हो जाए। इसका एग्जांपल भी बता देता हूं मैं आपको। पुराने जमाने में रेलवे के जो कोचेस होते थे, वो कोचेस डिजाइन करने के लिए रेलवे के पास टीम हुआ करती थी, टीम डिजाइन करती थी, सोच होती थी। ये जो नए कोचेस आए हैं इसमें फर्क क्या है? अब जब आप पुराने कोचेस पे जाओगे और नए कोचेस पे जाओगे तो पुराने और नए कोच में कॉर्नर डिजाइन किया गया है प्रॉपर तरीके से। मैक्सिमम टाइम ये जो नए कोचेस हैं, ये नए कोचेस बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनाया गया है, पर्टिकुलरली टॉयलेट्स के लिए वो यूज किए जाते हैं। और वो कोचेस में टॉयलेट का जो सेक्शन है वो ऐसा बनाया गया है कि जो टॉयलेट का वॉश बेसिन था जो आपके रास्ते में आता था, अब वो रास्ते में नहीं आ रहा है, आपके पाथ में नहीं, वो आपको सपोर्ट कर रहा है। यानी वो जगह का ऑप्टिमाइजेशन किया। आईआईटी बॉम्बे ने शायद से उसका डिजाइन बनाया है अगर मैं गलत ना हूं तो। सो द थिंग इज दैट उन्होंने क्या किया, वही जगह देखी, उसी जगह का उन्होंने प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया और जगह बचाई। अगर वो जगह बची है तो जगह किसके लिए बची है? वो जगह नॉर्मल इंसान के लिए बची, आपके लिए मेरे लिए नहीं बची। अगर वो जगह बची तो आपकी जो विड्थ है, जो आपका बर्थ है, वो थोड़ा सा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बड़ा बन सकता है। अरे मेरी बात समझ लो, तो ये बातें याद रखिए। सेफ्टी के लिए भी हो सकता है, कॉस्ट रिडक्शन के लिए भी हो सकता है, इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज भी हम उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एरर रिडक्शन के ऊपर भी बात बता दूं मैं आपको। बुर्ज खलीफा,
बुर्ज खलीफा, मैं ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बच्चों, ऑप्टिमाइजेशन किस वे से डील किया जा सकता है उसके लिए। सो ध्यान से देखना, बुर्ज खलीफा का जो बिल्डिंग था वो टारगेट कंप्लीट करने के लिए उसको एक सर्टेन टाइम दिया गया था। तो वो सर्टेन टाइम में जैसा भी हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हुए हम सब चीजें एक साथ कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। बुर्ज खलीफा एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके टॉयलेट ब्लॉक्स प्रीकास्ट किए गए, यानी पूरे टॉयलेट ब्लॉक्स उन्होंने बाहर बनाए और वो टॉयलेट बॉक्स बाद में एक के ऊपर एक रखे गए हैं। वो रखते हुए उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज किया, बनाते हुए टेक्नोलॉजी का यूज किया, क्योंकि ये सब बनाते हुए एक चीज हो सकती थी, वो क्या थी? एरर। तो वो एरर रिड्यूस करने के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज किया और उससे अल्टीमेटली क्या सेव हो गया? टाइम सेव हो गया, क्योंकि पूरी बिल्डिंग कंप्लीट बन गई और एक के ऊपर एक उन्होंने क्या कर दिए? टॉयलेट ब्लॉक्स पुटअप कर दिए। सी हाउ इजी इट इज। The thing is that how you are going to see the optimization and how you are going to use the optimization will give you the clue of the optimization. Clear है इतना? So I am moving forward. ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। लेकिन ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है इसका, दिस डजंट मीन दैट ऑप्टिमाइजेशन हैज बीन इन द यूज सिंस 1642। ये बात याद रखिए, ये भी मैं क्लियर करूंगा, लेकिन जस्ट वेट एंड वॉच। सो आइजैक न्यूटन, इन्होंने डिफरेंशियल कैलकुलेशंस की मेथड यूज की और डिफरेंशियल कैलकुलेशन में ऑप्टिमाइजेशन की जो नॉर्मल मेथड यूज की जाती थी वो भी फाइंड आउट की। लैग्रेंजेस ने वो बाद में कैलकुलस ऑफ वेरिएशन निकाला और उस कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन में कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन की कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की। कॉची, इन्होंने डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड और अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन 1857 के दौर में निकाला। जॉर्ज बर्नार्ड डेजिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड सिंप्लेक्स मेथड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही है वो सिंप्लेक्स मेथड जिसकी वजह से ये पूरी राम कहानी चली होगी। यानी ये किस्सा है सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। आप जानते हैं, हिटलर का नाम सुना होगा आपने सभी, सही है ना? अब ये हिटलर का रेफरेंस कहाँ से आया, बता देता हूँ। हिटलर ने हेवी आर्टिलरी यूज की थी और वो हेवी आर्टिलरी यूज करने के लिए उसने पहले से ही बॉम्बिंग, शेलिंग एटसेट्रा एटसेट्रा के लिए सब चीजें पहले से प्रीकास्ट करके रखी थी। बहुत असला था उसके पास, इमेजिन नहीं कर पाते इतना असला था उसके पास। सो थिंग इज दैट उसने जब इंग्लैंड पर अटैक कर दिया तो वो रैंडमली, यानी पूरा लंदन के ऊपर पूरे एरोप्लेन से, पूरे इससे, पर्टिकुलरली फाइटर जेट से वो पूरे असॉल्ट करना चालू कर दिया। उसने पूरे बॉम्ब्स एटसेट्रा चीजें फ्लो करना चालू कर दी। इंग्लैंड तो इसके लिए रेडी नहीं था। तो विंस्टन चर्चिल ने उसके आर्मी हेड्स को बोल दिया कि एक ऐसी सिस्टम यूज करो जिससे आप रैंडम शेलिंग मत करो, शेलिंग ऐसी यूज करो सो दैट इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा हो। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट उनके जो पूरे आर्मी के हेडक्वार्टर्स में जो बैठे हुए लोग थे, उन्होंने कुछ जियोग्राफिकल एक्सपर्ट्स, कुछ मैथमेटिशियंस, कुछ डॉक्टर्स एटसेट्रा एटसेट्रा सब लोगों की एक टीम बनाई और उस टीम में ये जनाब भी थे। उन्होंने क्या किया, पूरी चीजें आइडेंटिफाई की क्या है, ये मैथमेटिशियन थे बेसिकली। फिर उन्होंने ये चीज आइडेंटिफाई करने के बाद, जियोग्राफिकल लोकेशंस आइडेंटिफाई करने के बाद एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया और वो ऐसी मेथड डिजाइन की, उस बेसिक मेथड को कहते हैं सिंप्लेक्स मेथड। और उस सिंप्लेक्स मेथड का कॉम्बिनेशन जियोग्राफिकल लोकेशंस के साथ उन्होंने अटैच करने के बाद जो इंग्लैंड ने काउंटर अटैक करना चालू कर दिया, उसमें कम असले में, कम बॉम्ब्स में, कम फाइटर जेट होते हुए भी इंग्लैंड ने जर्मनी को काफी अच्छा नुकसान पहुंचाया। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस याद आने के बाद, इसका सिग्निफिकेंस पहचानने के बाद
इंग्लैंड और अमेरिका में इसके ऊपर ध्यान देना चालू हो गया कि ये एक नया सेक्टर है जिससे हम चीजें रीडिफाइन कर सकते हैं, री आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ऑपरेशन रिसर्च या ऑप्टिमाइजेशन, इसको एक नई पहचान मिली। दिस हैज बीन ट्रीटेड एज अ साइंस, particularly a branch of mathematics. And after that, they have started to redefine mathematics. And फिर उन्होंने, after that particularly, they have collected all the formulas, all the things which were previously developed and which were used for the same reason, for the same kind, but in a different manner. And after that collection, they have started the new branch and new research in mathematics called as operation research or optimization. So this is the basic introduction of optimization and operation research. So my dear students, I am for this moment I am concluding here, and नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे जाऊंगा। मैं प्रीवियस दो स्लाइड्स वैसे ही रखूंगा, सो दैट ये स्लाइड्स ऐसे ही रखूंगा, सो दैट आप इसके साथ विल मैचअप कर सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।